Okay. Yes, in the forex market, in the XPO market, of course. And our vision. Can you repeat the other question? Yes, vision. Your vision with why you should join XPO.markets. What is your faith and what is your possibilities? As I have mentioned, I have been already with XPO for many years, working with you, Rajat, of course, and Vichai, and many other operators and workers. As Mr. Marcus has mentioned, the team, when you are working with a team of XPO, you feel like a family. That is first of all. You don't feel like a working, that's it. No, you are feeling like it's a part of your life. You are enjoying it while doing it. Second of all, I have mentioned about limits, and I have seen it firsthand that XPO are limitless. They have done insanely crazy and amazing things that shocked the world, shocked me personally with their work. So 2 reasons I think are way more efficient, and these 2 reasons are completely in my resume. I'm looking for these 2 categories that I would like to work with my working life and professional life. So limitless and a family. This is all anyone can hope for. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you for coming in. Glad to guys. Glad heartily congratulations to me also that you are taking your precious time and give us time. Thank you so much, sir. It's my pleasure to. It's our pleasure. It's our pleasure. So much, you are very welcome, Mr. Rajat. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Tobias, for giving your valuable time to us. And one thing I want to say to you and Mr. Marcus, that leadership is not just the title, it's an impact, inspiration, and influence, and you, both of you, embodied that spirit within you. So thank you so much for giving your time. Thank you to you too as well. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Guys, give a big applause to Tobias sir and Marcus sir. They can give us time, precious time to us. And now is the time to Rohini ma'am, because she can translate everything, because 2 questions are escaped from my side also. So Rohini ma'am, please आप एक बारी हम सब लोगों को बताएं कि भाई आपने क्या-क्या सवाल पूछे थे और सर ने क्या-क्या जवाब दिए. And Tobias sir, thank you so much for your time. Before proceeding to Hindi translation, I want to just tell something to Mr. Tobias and Marcus, that we are having one grand conference in Azerbaijan, Baku, and like to invite XPO team, especially both Mr. Marcus and Mr. Tobias, and we will be fortunate your presence over there. We will try our best to be present. Thank you very much. Sir will coordinate with you for the dates and everything, but it's an invitation from all of us from India to be there and be the part of that conference. It would be my pleasure. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Tobias sir. Thank you so much. Have a lovely one. Have a lovely evening. Bye-bye. Bye-bye. Bye, sir. Bye. चलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार ताली बजाएं सर के लिए. क्या बात है सर, क्या बात है सर. बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा. और हमारे लिए बेस्ट टाइम था, मैं बोलूं तो. और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे रोहिणी मैडम से कि ये इंग्लिश के वर्ड हमारे लीडरों को थोड़ा सा कम आते हैं, आप ये बता दें कि हमें करना क्या है, और बताया क्या तो और अच्छा हो जाएगा. तो पूरे सारांश का एक वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, नो लिमिट. जी, लिमिटलेस हो. बहुत बड़ी बात. सारी बात का एक साथ कि लिमिटलेस हो जाए, सारी चीज जो है अपने आप ही हासिल हो जाए. नहीं सर, एक चीज और भी बोल दी ना कि सर आप अपने पे जितना भरोसा करते हो वही सबसे बड़ी पावर है, आप उसी से कर सकते हैं, उसी से काम कर सकते हैं. क्योंकि आप अपने पे बिलीव करते हैं तो आपकी नो लिमिट, आप कितना भी कुछ भी कर सकते हैं. जी रोहिणी मैडम प्लीज कंटिन्यू करिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था उनसे कि प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है उनका, जिसके कारण से पूरा वर्ल्ड में जो है उनका कंसिस्टेंटली हम ग्रोथ देखते हुए आ रहे हैं. तो उनका आंसर सिर्फ 3 शब्द जो हैं
इंटीग्रिटी, इम्पैक्ट और इनोवेशन। इंटीग्रिटी मतलब कोई हमें नहीं भी देख रहा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में बहुत फर्क होता है। तो इंटीग्रिटी मतलब कोई हमें नहीं भी देख रहा है तो भी हम पूरे ऑनेस्टी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं, उसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। इम्पैक्ट, आप क्या छाप छोड़ रहे हो, ये हमारा उनका एक सबसे बड़ा पिलर है, जिसके कारण से वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिख रहा है हमें मार्केट में। और इनोवेशन, मैं हमेशा इस बात के लिए ये करती हूँ सर कि मार्केट में आना अलग बात है, लेकिन मार्केट में टिके रहना ये सबसे बड़ी बात होती है। 9 साल की जर्नी। यस सर। और इनोवेशन जो है इनका दिन पे दिन, ये हम पिछले 2 साल से तो खुद चश्मदीद गवाह हैं, जगह जगह पे उनके साथ में है। और इनोवेशन जो है उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो ये 3 चीजें, इंटीग्रिटी, इम्पैक्ट, इनोवेशन, ये उन्होंने कहा ये हमारे ग्रोथ का रीजन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब लंबे दूरी तक के ग्रोथ होते रहे मार्केट में, ना केवल सिर्फ हमें एक अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन दिन ब दिन एक अच्छा इनोवेशन, नई नई तकनीकियां भी आती जाए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकें और रिटर्न्स भी ले सकें। तो इसके लिए उनका आंसर था कि ऑपरेशन एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट है वो इस ऑपरेशन में, मतलब किसी भी कार्य को करने में वो एफिशिएंट है। और ये सबसे बड़ा मूलधार होता है कहीं का भी कि कोई भी किसी में भी एफिशिएंसी होना चाहिए। अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बोला, डिसिप्लिन्ड अबाउट कंप्लेंट्स। कोई भी क्लाइंट का, इन्वेस्टर का अगर कोई कंप्लेन आता है तो उस पर वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यहाँ पर जो है ये चीज हम खुद सब जानते हैं कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में हमारे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में ईमेल एड्रेस जो चेंज करने का था वो 4 घंटे में हुआ है, 2 घंटे में हुआ है। तो इसके लिए वो इतने डिसिप्लिन है, जो उन्होंने बोला ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर हम कोई भी चीज, ये यूनिवर्सल है, हर जगह है और एक्सपीओ इस चीज को फॉलो करता है। लॉन्ग टर्म वैल्यू मतलब जैसे हम हमेशा कोई भी सामान खरीदते हैं घर की भी, तो आफ्टर सेल्स क्या, उसके बाद में क्या, तो ये लॉन्ग टर्म जब होता है तो ही जाकर आप किसी सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने क्लाइंट्स को वैल्यू देते हैं, उनके लिए उतना वैल्यूबल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ना केवल शॉर्ट टर्म दे दिया एक बार में और बाद में कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो ये उनके सेकंड क्वेश्चन का था, जिसके कारण से वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, मतलब आखिर तक के वो चलेंगे। थर्ड मेरा क्वेश्चन था उनसे कि क्या विजन है जिसके कारण से आगे के 10 से 15 साल एक्सपीओ कहां पर टिकेगा, कहां पर स्टैंड करेगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात करी, वी डोंट फॉलो, वी क्रिएट इट। हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम खुद बनाते हैं। तो ये उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। और वहां पर उन्होंने ये बताया कि उनके बीच में जो बैलेंस है, पीपल, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी, माने जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने उस चीज का पूरा भरसक तरीके से उस चीज को उन्होंने उपयोग किया। अपॉर्चुनिटी का जो असली बात यही होती है कि आपके पास में कोई चीज आई और आपने फट से उसको उपयोग में लाया। टेक्नोलॉजी जो बहुत जरूरत है, और तीसरा है पीपल, मतलब इन तीनों के बीच में उन्होंने काफी अच्छा बैलेंस बना के रखा है। बाकी फ्यूचर इवॉल्विंग इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वो इवॉल्व हो रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, जिसमें से हम लोगों ने काफी सारे जगह में, इंडिया से हम गए हैं, मैं अबू धाबी है, हांगकांग है और ऐसी काफी से जगह पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बोला कि ये हमारा कोर पार्ट है, माने डिजिटली जो है ट्रांसफॉर्म होना, आप नए दिन ब दिन जो है चीजें बढ़ती जा रही, तकनीकियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण से ये अपने अंदर भी वो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। और ब्लॉकचेन इनका खुद क्या एनालिसिस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम एनालिसिस चलता रहता है, मार्केट का एनालिसिस क्या है, और उसके हिसाब से इन्होंने पूरा जो है ये बताया कि आगे के 10 से 15 साल जो है वो इस बेस पर आगे तक के, उनका ये विजन है कि इस बेस पर वो आगे तक के चलेंगे। इसके बाद में सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, रजत सर ने मिस्टर मार्कस से, कि आपने क्या ऐसा देखा एक्सपीओ में जिसके कारण से आपने एक्सपीओ को ज्वाइन किया। मिस्टर मार्कस ने 4 पॉइंट्स बताए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं। जो लोग हैं यहाँ पर वो हार्ड वर्किंग है, एक्सपीओ की पूरी टीम जो है हार्ड वर्किंग है,
वी कनेक्ट एज अ टीम, हम जो है टीम के बतौर कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम, सब अपना काम कर रहे हैं लेकिन सब इकट्ठे एकजुट होकर हैं, एज अ फैमिली काम करते हैं। यस सर। अपॉर्चुनिटीज जो मौका हमें आता है हम उसको प्रॉपर तरीके से उपयोग में लाते हैं। एक्सपीओ इज मेकिंग द फ्यूचर राइट नाउ, ये उन्होंने देखा कि एक्सपीओ जो है फ्यूचर बना रहा है, सिर्फ प्रेजेंट पर वो नहीं टिका है, वो नए नए इनोवेशंस जो है वो मिस्टर मार्कस ने देखा है कि नए नए इनोवेशंस ये लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपीओ के फ्यूचर के कारण से डेफिनेटली उन्होंने अपना भी फ्यूचर वहां तय किया है कि अगर मैं ऐसी कंपनी के साथ में रहता हूँ तो मेरा फ्यूचर भी सेट है। ये अक्सर हम जॉब में जो लोग होते हैं ये चीज हम नोटिस करते हैं। तो ये मिस्टर मार्कस का आंसर था लास्ट। इसके बाद में मिस्टर तोबियस ने से मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, पारदर्शिता, ये क्या ऐसा है, और जो पूरा उनका व्यवहार है, क्या एथिक्स है उनके, एथिकल गवर्नेंस इन इट्स मैनेजमेंट, कि उनका जो हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो हम लॉन्ग टर्म विजन देख सके और एक क्रेडिबिलिटी हम देख सके वहां पर। तो उन्होंने यही बताया, 3 चीजें बताई कि हम बहुत सिंपल है, वी आर वेरी सिंपल। यहीं पर जो कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पर बहुत ज्यादा उलझने होती है, चीजें वहीं गड़बड़ाती है, जो चीज सिंपल है वो सिंपल होती है, वहां पर अलग से कोई चीज को दर्शाने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल है। दूसरा, प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट, हम जगह जगह जब हम किसी चीज को फेस करते हैं, हम जब सामने आते हैं और बात करते हैं, वही हमारी ट्रांसपेरेंसी है। हम वो ताकत रखते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में हैं और हम हर चीज में ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई भी बात हो, जैसे कि शुरुआत से भी अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम अगर बहुत ही गहराई से समझेंगे तो वहां पर हमें ये बात समझ में आएगी कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर पारदर्शिता, मतलब आप इजीली आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनको क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है, हर चीज जो है ऑन स्क्रीन है, हर चीज जो है वो आपको जहां पर वो प्रेजेंट है, जहां पे मनी एक्सपो हो, जो भी हो, वहां पर जहां पर भी वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट है, वहां पर वो स्वयं जो है हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी है। लास्ट में जो है मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम करते हैं एक्सपीओ पे, और आज जो है कई लोग जो हैं, अब आज फाइनेंशियल ग्रोथ अगर हम चाहते हैं तो हम जो है एक्सपीओ के भरोसे हैं, एक्सपीओ पर टिके हुए हैं। तो ऐसे में आप हमारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को क्या बोलना चाहेंगे? तो वहां पर उन्होंने कहा बी लिमिटलेस, आप अपने अंदर कोई भी लिमिट मत रखिए, आप बिल्कुल लिमिटलेस हो जाइए। और जब आप एक दिन के लिए भी अगर आप लिमिट, उन्होंने बोला कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ किसने कहा है, लेकिन अगर आपने एक दिन के लिए अगर आप लिमिटलेस हो गए तो आप क्या करोगे? आपके पास में कोई लिमिट नहीं, आज आपको लिमिटलेस कर दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो उस दिन जो आप करेंगे वही आपको एक्सपीओ के लिए करना है। तो ये उनका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। रजत सर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने क्यों ज्वाइन किया है यहाँ पर एज अ जो जिस पोजीशन में है वो, तो उनका आंसर है आई फील लाइक अ फैमिली। एक्सपीओ को वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ वो फील करते हैं कि मैं एक यहाँ पर एक फैमिली का पार्ट हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी के मेंबर्स नहीं है, वो मेरे टीममेट्स नहीं है, वो मेरा फैमिली का पार्ट है। और उन्होंने सेकंड पार्ट में भी यही बोला, दैट्स द पार्ट ऑफ माय लाइफ, ये एक्सपीओ मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और लास्ट जो है उन्होंने उसी बात को वापस से दोहराया कि एक्सपीओ इज लिमिटलेस, एक्सपीओ लिमिटलेस है, इसीलिए उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपीओ के साथ में मैच हो रही है, वो खुद भी लिमिटलेस है और एक्सपीओ भी लिमिटलेस है। और ये चीज उनके अंदर उन्होंने देखी और वो वहां पर एक्सपीओ में आज वर्किंग पोजीशन में। क्या बात है मैम, बहुत धन्यवाद आपका। और काफी खूबसूरत तरीके से जो सवाल जवाब अपन ने करा। तो साथियों को मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब इनसे मेरी बात चली थी आज से 3-4 दिन पहले, जब ये एक्सपो में थे, फॉरेक्स एक्सपो जो कि दुबई में था, वहां XPO.market का बूथ लगा था। विचाई सर वहां प्रेजेंट थे, तो विचाई सर को एक रैंडमली मैसेज करा गया था कि सर इफ पॉसिबल कि अगर ये हमारी जूम सेम डे हो जाए, तो 6-7 तारीख के लिए इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में विचाई सर को ट्रेवल करना पड़ा 8-9 तारीख को। 10 तारीख को सर अपने जगह पहुंचे और 10 तारीख को इन्होंने बताया कि मैंने दोनों को बता दिया है, आप इनका टाइम ले लेंगे। और सही बताऊं तो मुझे कल शाम को जैसे ही टाइम मिला तो मुझे सबसे पहले जहन में एक ही आया कि ऐसे कोई व्यक्तिगत जो इनसे ढंग से बात कर पाए और वही लोगों को समझा पाए। तब मैंने रोहिणी मैम का जिक्र करा और मैंने सोचा कि भाई मैम को आगे करके कि ताकि मैम उनसे वो क्वेश्चन आंसर कर पाए
क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि वो क्वेश्चन कर दे और आंसर कर दे और आंसर मैं समझ नहीं पाऊँ, मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँ। तो ये जो सारी कोशिशें हैं, ये तमाम जितनी भी कोशिशें हैं साथियों, ये आपके लिए, कि आपका जो भरोसा, जो आप लोग बोलते हो कि भाई मुझे 15% भरोसा कम हो रहा है, 10% हो रहा है, आपका भरोसा 1000% रहे। आज एक्सपीओ के माध्यम से लाखों लोगों का घर परिवार बदला है, लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। सिर्फ और सिर्फ यूं ही नहीं कहता कि भाई साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, वो जो सह जाएगा वो रह जाएगा। उसका कारण है, उसका ये कारण है साथियों कि ये टीम इतनी बिल्डअप है। आज इनके मुंह से आप लोगों को मतलब क्या लगा, इन्होंने क्या कितनी प्यारी बात बोली कि हम वर्क करते हैं एज अ फैमिली के साथ। आज अगर मेरा परिवार इतना बड़ा परिवार है तो मैं क्यों नहीं अपनी जान लगाऊं इसके लिए, भाई मुझे कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। ठीक है कि मुझे पता है कि अगर इस सिस्टम के ताकत मुझे पता थी 2021 के अंदर, और आज जो ताकत है वो 1000% ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि डे बाय डे, मंथ एंड मंथ, ईयर एंड ईयर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा है। साथी कितनी बड़ी बात बोली विचाई सर ने कि 9 साल कोई कहते, इनके सुनने में आया, वहां पर लोगों ने इनको फेक बताया। कई लोग बोल रहे हैं सर कल को स्कैम हो जाएगा। स्कैम करने वाली कंपनी 9 साल नहीं टिकती। कितनी बड़ी बात बोली। स्कैम करने वाली कंपनी बार बार आपको कहीं किसी बड़े बड़े एग्जीबिशन में नहीं दिखेगी, दुबई जैसे, मेक्सिको जैसे, हांगकांग जैसे। ठीक है, और इस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इस लेवल पे बताना, तो उसके साथ में, उस धारा के साथ में हम अपना जीवन क्यों नहीं सुरक्षित समझे। आज मैं अपने सभी लीडरों को एक ही बात बोलता हूं कि आज हमारी कम्युनिटी की जो ताकत है वो कैसे बनी। क्या एक दिन में बनी प्रवीण सर? नहीं सर, 4 साल लग गए सर। 4 साल में अगर आज 400 लोग ये बात बोलते हैं कि सर हमें एक्सपीओ के ऊपर 101% ट्रस्ट है, ये मैंने कमाया साथी। सर इसमें एक बात और ऐड हो रही है कि अभी तक हमने किसी को नहीं देखा 10 लाख की टीम मिल गई। अभी तो हमारे बीच में मैनेजमेंट आने लग गया है सर। अब आप देखिए सर, और कितना बड़ा फेथ है। बिल्कुल है सर। के लिए हर बार लोगों के बड़े बड़े सवाल रहते थे कि सर हम किसी को उनको नहीं देख पा रहे, मैनेजमेंट कौन है, कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये ना दिखाते दिखाते भी एक्सपो की सर्विसिंग, जो सर्विस रही, मैडम अभी बात कर रही थी, बहुत सारे पॉइंटों का एथिकल बातें कर रहे थे, इनोवेटिव बातचीत कर रहे थे, भरोसे की बात कर रहे थे। तो ये हम जो अभी तक कम्युनिटी ने जो भरोसा दिया, इवन इंडिया के अंदर जो भी भरोसा दिया वो एक कम्युनिटी ने दिया। और आज जब कम्युनिटी के भरोसे से 10 लाख का ग्रुप आया, तो एक बात तो गारंटी है सर, आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी आके खड़ा हो गया कि आपको जहां जरूरत हम आएंगे। बिल्कुल एग्जाम्पल देखा सर थाईलैंड के, जब हमने कॉल किया तो सर उस वहां पहुंचे। आज हमारे साथ और कुछ स्टाफ्स आए और चीजें आई। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है सर कि लोगों के जो सवाल हैं, हजारों सवाल रहते हैं। मैं जानता हूं कि आज भी मीटिंग को लेकर कई सवाल हैं, तो वो चाह रहे होंगे कि हम इनको पूछें, लेकिन सभी सवालों के जवाब देना भी पैनल पे इतना आसान नहीं है, नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि सर आप जब लगातार टिके रहेंगे, भरोसे के साथ काम करते रहेंगे, तो आपका भरोसा उन सारे सवालों का जवाब होगा जो आपके दिल में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपने अंदर बिलीव लेकर आओ ना। आप अपने अंदर अगर बिलीव नहीं लेकर आ रहे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है, तो रियल बात है आप सीखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, और आप आगे काम भी नहीं कर पाएंगे। और मैं तो तहे दिल से धन्यवाद दूंगा रोहिणी मैम का, जिन्होंने उनको खुद आगे चलकर ये बात बोल दी कि सर हमारा अजरबैजान में प्रोग्राम है, अगर आप टाइम निकाल कर आओ। और मैं मैसेज भी कल सवेरे उनको कर भी दूंगा कि सर हमारी इतनी डेट के आसपास का टाइम होगा, तो आप फ्री रहना। और पॉसिबिलिटी हुई अगर सारी, मैं इस पैनल के माध्यम से दावा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक मीटिंग अगर उनकी कहीं और स्केड्यूल है, ऑलरेडी कहीं पे है, तो उसका मैं दायित्व नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये मालूम चला कि वो उतनी तारीख को वहां पर फ्री है, मैं इन दोनों व्यक्तियों को वहां अपने अजरबैजान अपने प्रोग्राम में पक्का बुलाने की चेष्टा करूंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को। बहुत बढ़िया सर।